Hello friends, welcome to the video tutorials of compiler design. In previous session we have discussed about the regular expression. Regular expression are the combination of input symbol and language operators such as a union, concatenation and closures. In this session we will discuss about regular definition. Please like and subscribe the channel. This is Rajul Suthar, Assistant Professor of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. So what do you mean by regular definition? Regular definition, D, that is a, here we indicate by D. So D gives the alias to regular expression R and use it for the convenience. Sequence of definitions are for following, like we are using the definition D1. So regular definition is here the D1 is R1, D2 is R2. Same way we can say that Dn to Rn. So where Di is a distinct name and Ri is a regular expression. We define by using this way. Regular definition की अगर आप definition create करने जाओ, so कैसे create करोगे? It give the name to certain a regular expression and use those name in the other regular expression. Then एक और एग्जाम्पल उसका दिखता है कि रेगुलर डेफिनेशन अगर आप यूज़ करने जाओ लेटर, सो लेटर को आप कैसे इंडिकेट करोगे? आइदर कैपिटल ए बी सी और डी और स्मॉल ए बी और सी अप टू जेड. अगर डिजिट को इंडिकेशन करना है रेगुलर डेफिनेशन, सो डिजिट में भी 0 1 2 अप टू 9 और आईडी if we are using the id, so letter in the bracket letter or digit whole bracket star, that is id. ओके, रेगुलर डेफिनेशन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो. ये 2-3 एग्जाम्पल है इसके. एक और एग्जाम्पल है अनसाइन पास्कल नंबर 3. So this is the unsigned Pascal number 5280 39.37 6.336E4. So regular definition for digit, we can see that 0 1, either 0 or 1 or 2 up to 9. So digit star we can write by this way, regular definition. And optional function, optional fraction part we can indicate by using the dot symbol and digit. For fraction part we require the dot symbol, digit, or it may be either empty, because after fraction part we can cover the empty string, empty part. So epsilon is for the empty string. And optional exponent, like we can use the e symbol. So e symbol को कवर करने के लिए आप क्या करोगे? e then plus minus or epsilon is used because this type of a numbering, this number cover the e minus symbol or plus symbol. So by this way you can write the regular definition. Okay, or it may be a empty string, so we require the epsilon symbol. Number that digit or optional fraction part, or we can say that optional exponent part is a exponent part. Transition diagram. What is a transition diagram? A stylish flowchart is called a transition diagram. Let we discuss. So we all familiar with the flowchart. So this is a simple flowchart. It start with this round symbol, okay, circle. It is called a initial state, or it is a starting state. This arrow indicate a transition. Then this type of arrow is called a start state.
if we combine these two symbol, so it become a start state, and double circle symbol, it indicate the final state. Okay. Hello friends, now let me discuss about the transaction diagram for the relational operator. So relational operator कौन कौन से है पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे हम लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, लेस और इक्वल सिंबल और ग्रेटर और इक्वल सिंबल, और we can say that equal symbol. So for this type of a relational operator हम रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन सी एक्सेप्ट हो रही है वो चेक करेंगे बाय यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम. जैसे कि कोई नंबर है 3 एंड 4, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, 3 लेस देन 4. सो ये नंबर हमने चेक किया कि 3 लेस देन 4 है, सो एक्सेप्ट है कि नहीं बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. लेट वी चेक. जैसे कि एक स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग सिंबल 0 से हम लेते हैं, सेकंड स्टेट जो है वो उसको 1 इंडिकेट करते हैं, फाइनल स्टेट को 2 से इंडिकेट करते हैं. मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है. स्ट्रिंग लेस देन और इक्वल एक पॉसिबिलिटी है. सो हम क्या रिटर्न होगा इससे, रिटर्न रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन और इक्वल. देन स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग उसके बाद एक्सेप्ट हो सकती है, अगर लेस देन और इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल. हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज़ नॉट इक्वल. यहाँ पे नॉट इक्वल के लिए. देन उसके अलावा कौन सी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रिंग यानी कि अदर में क्या आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन. लेस और इक्वल यहाँ पे कवर हो गया, नॉट इक्वल कवर हो गया. सो यहाँ पे लेस देन सिंबल तो है ही, आप चेक करो लेस देन सिंबल तो है, लेकिन ये दोनों कवर हो गया, नॉट इक्वल एंड लेस देन और इक्वल. तो उसके बाद कौन सा रिमेनिंग है, लेस देन. ओके, नंबर इज लेस देन. देन इसके अलावा कौन सी पॉसिबिलिटी है, नंबर ग्रेटर देन भी हो सकता है. सो इनिशियल कंडीशन में आप चेक करो कि नंबर ग्रेटर देन है और इक्वल है. सो ऐसी स्ट्रिंग के लिए हमें फाइनल स्टेट ये जो 7 वाला है वो कंसिडर करते हैं. मतलब कि क्या रिटर्न होगा, रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल. उसके अलावा कौन सी पॉसिबिलिटी है कि नंबर ग्रेटर और इक्वल नहीं है, सो ओनली ग्रेटर देन है. ओके, यहाँ पे नॉट इक्वल तो आ गया. सो नॉट इक्वल 2 बार कवर नहीं करते, ओनली 1 टाइम कंसिडर करते हैं. सो यहाँ पे नॉट इक्वल एक बार हो गया, तो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन. सो ऐसे आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हो या उसका ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो. ओके, पहली एक्सेप्टेंस क्या होगा कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू समथिंग. ओके, दोनों वैल्यू इक्वल है. सो क्या रिटर्न होगा, रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल, EQ इज अ इक्वल. अनसाइंड नंबर के लिए ट्राई करते हैं, 3 के लिए जैसे. सो वी स्टार्ट विथ दिस सिंबल एंड डिजिट एक्सेप्टेड. सो ऐसे कोई भी डिजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो. यहाँ पे लूप दी गई है, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप लूप से इंडिकेशन कर सकते हो. पॉइंट कवर हो रहा है इसमें फ्रैक्शन पार्ट. सो ये 2 नंबर तो हो गए, मतलब स्टार्टिंग नंबर कोई भी हो, सेकंड नंबर कोई भी हो, इंटीजर नंबर. लेकिन फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ये कवर कर सकते हो, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो क्या होगा, डॉट वाला आएगा. उसके बाद फिर से नंबर पॉसिबल है, 1 और मोर नंबर्स. सो यहाँ पे क्या होगा, डिजिट एक्सेप्ट बाय 1 और मोर नंबर्स. सेम आपको इस टाइप के नंबर के लिए, अनसाइंड नंबर के लिए ड्रॉ करना है, तो डायग्राम्स क्या होगा, चेंज होगा, मतलब कि आप उसको आगे बढ़ाओ. ओके, इट कवर दी प्लस और माइनस सिंबल. यहाँ पे प्लस सिंबल भी कवर होता है, माइनस सिंबल भी कवर होता है. सो उसके बाद फिर से आप देखो तो क्या है, एक डिजिट है, तो डिजिट आने के बाद आप एक्सेप्ट करते हो. सो दिस इज द ट्रांजैक्शन डायग्राम फॉर अनसाइंड नंबर. ओके, अगर यहाँ पे नंबर के बीच कोई कवर हो रहा है
एक्सपोनेंट पार्ट, सो 45e प्लस 6 और वो डिजिट जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट है। सो यहाँ पे ई जो आ रहा है आप कहाँ पे जंप करोगे, पॉइंट पोर्शन वाला नहीं है, या ये पोर्शन जो है वो स्किप हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको जंप करवाओ। ये जो लेबल है इंडिकेशन 5 वहाँ पे आप जंप करवा रहे हो, मतलब ये एरो यहाँ पे कवर होगा, यहाँ से लेके यहाँ पर। सेम चीज़ अगर प्लस सिंबल और माइनस सिंबल नहीं कवर हो रहा है फॉर दिस टाइप ऑफ अ नंबर, सो आप क्या करोगे, अगेन जंप करवाओगे डायरेक्टली अप टू लास्ट स्टेज। सो यहाँ पे लास्ट स्टेज कौन सा है, 8। बाकी सभी के लिए अदर जो लिखा है, अदर मतलब कि अगर उससे अलावा कोई भी स्ट्रिंग होगी तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अनसाइन नंबर। तो ये डायग्राम किसके लिए है, अनसाइन नंबर के लिए ट्रांजिशन डायग्राम है। हार्ड कोडिंग एंड ऑटोमेटिक जनरेशन लेक्सिकल एनालिजर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।